नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। The JioPhone will be available to all Indians for an effective price of ₹0. दुनिया में जियो का तहलका, फ्री में मिलेगा जबरदस्त फीचर फोन। 150 रुपए में महीने भर अनलिमिटेड कॉल, SMS, फोन से टीवी देखने का भी होगा ऑप्शन। Board of Directors have decided to recommend a bonus issue of 1:1. रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं AGM पर निवेशकों को तोहफा, एक पर एक बोनस शेयर का ऐलान। चेयरमैन मुकेश अंबानी बोले अगले 10 साल में हासिल करेंगे पिछली 40 साल की तरक्की। टेलीकॉम कंपनियों को लगा डबल झटका, जियो के ऐलान के बाद शेयरों में भारी गिरावट। इधर कैग ने भी कहा 6 टेलीकॉम कंपनियों ने छुपाई 61,000 करोड़ की आय। रिलायंस और विप्रो के दम पर बाजार में रौनक, निफ्टी 9,900 के पार बंद। बुजुर्गों को मोदी सरकार का तोहफा, प्रधानमंत्री वय वंदना पेंशन योजना लॉन्च, 8% का मिलेगा गारंटीड रिटर्न। रेल के खाने में हो रहा है खेल, कैग ने खोली पोल, कहा इंसानों के लायक नहीं है रेलवे का खाना। और मर्सिडीज ने लॉन्च की अपनी दमदार SUV, कीमत करीब 75 लाख रुपए। सबसे पहले बात करेंगे रिलायंस जियो के महाधमाके की। टेलीकॉम की दुनिया में जियो ने एक और तहलका मचा दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM में कंपनी के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी ने इंडिया का इंटेलिजेंट जियो फोन लॉन्च कर दिया। जियो का ये फोन आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर आपको सिर्फ 1,500 रुपए जमा करने होंगे, जो 3 साल बाद वापस मिल जाएंगे। इस फोन में ऐसे ढेर सारे फीचर्स हैं जो किसी स्मार्टफोन से कम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये फोन एक तरह से फ्री मिलेगा। How much the JioPhone will cost? Remember that even an entry-level 4G smartphone costs between 3,000 and 4,500 rupees. Today, I am delighted to announce that the JioPhone will be available to all Indians for an effective price of ₹0. इतना ही नहीं, फोन में डेटा इस वक्त मौजूद बाजार रेट से बहुत कम रेट में मिलेगा। और तो और इस फोन से आप टीवी भी देख पाएंगे। किरण, शुरू करते हैं एक फोन कॉल से। वॉइस कमांड पे कॉल किरण। Okay, looks like I have a missed call from Akash. Let me now try to reply to him with an SMS, again using the voice command. Message, Akash. Sorry, can't take your call, slightly busy right now. Got it. Your voice command works flawlessly, Kiran. Isn't this impressive? It works just like magic. Now let me show you how easy it is to browse the internet on the JioPhone. When is Ganesh Chaturthi? Ganesh Chaturthi is on Friday, 20th. Apps like Jio Music, Jio Cinema, Jio TV are already preloaded.
So let's have some music. How about something patriotic? Again, let me use voice command. Jio Music पे वंदे मातरम सुनाओ. Now let's try some cinema. Show Bahubali 2 trailer on Jio Cinema. राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर Yet another useful feature, we believe, is that the JioPhone is a potential lifesaver in times of distress. Any JioPhone user can long press the number 5 button and the JioPhone will automatically send a distress message to your selected near and dear ones. Okay, let me try that. I have added Akash as my emergency contact on my JioPhone. Let me now press the 5 button and see what happens. As you can see, it also sends your location, and this is an invaluable feature. We have shown you just a few of the capabilities of the JioPhone today. There are literally hundreds of features packed into this tiny little phone, but it's super powerful, and hundreds of more that are in development. For example, later this year, we'll be introducing NFC technology to the JioPhone. All Indians can link their bank account, Jan Dhan account, UPI account, or any payment card to the JioPhone and make payments with a simple tap of their JioPhone. Just get your hands on a JioPhone, and I promise you, your life will be transformed. तो ये था JioPhone का डेमो, उसके तमाम फीचर्स को दिखाते हुए, लेकिन यहाँ पर फोन की एक झलक क्या देखी लोगों ने। अब सभी को जियो के नए मोबाइल का बेसब्री से इंतजार भी है। हमने मुंबई और दिल्ली में लोगों से बात की और उनका कहना है कि डिजिटल इंडिया की मुहिम से अब गरीब भी जुड़ सकेंगे। जियो हमको अगर फ्री में हैंडसेट दे रहा है और साथ में साथ कॉलिंग, SMS और फ्री डेटा, ये सब हमको फ्री में मिल रहा है और कम से कम मतलब हमारे पॉकेट मनी भी हमारा सेव हो रहा है काफ़ी अच्छा खासा। तो बेहतर है कि हम वही लेना चाहेंगे। जियो का सर्विस अच्छा है, फ्री दे रहा है, तो इसके लिए इतना 1500 में फ़ोन दे रहा है, तो हमारे गरीब आदमी के लिए अच्छा है, इसके लिए हम लेना चाहते हैं। हम लोग के लिए तो ये आसान हो जाएगा, सब पॉकेट मनी बच जाएगा। अभी महंगाई के ज़माने में जो अपने को जियो में अपने को जो मिलता है फैसिलिटी, वो बहुत ही अच्छा है। ये तो मतलब एक सपने जैसा है कि इतने कम पैसे में आपको स्मार्टफोन भी मिले, 4G फैसिलिटीज़ भी मिले और आपको मतलब इतना कुछ मिले, तो मतलब टू गुड टू बिलीव। किसी इंसान के पास 1500 में इतना अच्छा फ़ोन आ सके, जिसके पास सब ऐप्स हों जिसमें आप कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। जो फ़ोन खरीदने की सोच भी नहीं सकता वो भी फ़ोन खरीद सकता है, तो इट्स वेरी नाइस ऑफर। 1500 में कोई 4G फ़ोन, जियो का फ़ोन आ रहा है, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। बस प्रॉब्लम पिछली बार की तरह ना हो, लाइंस बहुत ज़्यादा लंबी ना रहे और ब्लैंकिंग ज़्यादा ना हो। इतना सस्ता फ़ोन है और इतना 4G डेटा दे रहे हैं, तो आई थिंक मुझे कल ही जाके इनरोल कर देना चाहिए। वाओ, एक बार ही तो बनता है लेना यार। आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट। बुकिंग शुरू होने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं डेफिनेटली।
तो यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं बुकिंग शुरू होने का, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं एजीएम के मौके पर चेयरमैन मुकेश अंबानी ने निवेशकों को भी बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी शेयरधारकों को एक पर एक बोनस शेयर देगी। The board of directors have decided to recommend a bonus issue of 1:1. Thank you. So, your board has decided to recommend a bonus issue of 1:1 share. मुकेश अंबानी ने बताया कि 40 साल में कंपनी ने 4700% ग्रोथ दिखाई है। उन्होंने आगे का ग्रोथ प्लान भी पेश किया। उन्होंने कहा कि जितनी तरक्की कंपनी ने पिछले 40 सालों में की है, उसे अगले 10 साल में करनी होगी। I am confident that Reliance's own growth over the next 10 years and our contribution to the Indian economy will surpass what it has achieved in the past 40 years. Similarly, Reliance's overall societal value creation over the next 10 years will also be multiple times higher than in the past 40 years. बोनस के ऐलान के बाद रिलायंस के शेयरधारकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका कहना था कि कंपनी से उन्हें 40वीं सालगिरह पे जोरदार तोहफा मिला है। बहुत बढ़िया था, क्योंकि 1:1 दिया, बोनस की बरसात करा दी उन्होंने, डिविडेंड भी दिया, मार्केट कैप बहुत बढ़ गया। मैंने इस पर कविता भी बोला कि आप बता दीजिए कविता जो आपने बताया उनको। कैसे शुक्रिया करूं आपका, आपने तो जमीन से उठाकर दिल में बिठा लिया। आपने इतना कुछ दिया, आपने तो इतना कुछ दिया, मेरे बिखरे शब्दों को कविता बना दिया। It's a most welcome step. I had demanded that around against 3,200 crores capital, he is having 2,85,000 crores reserves and surplus. So it's a 10 share bonus against 1 he should announce. But 1:1 at least we are accepting as a shareholder. आज रिलायंस एजीएम में जहां एक और एक से बढ़कर एक धमाकेदार ऐलान हुए, वहीं दूसरी ओर एजीएम के दौरान कई भावुक पल भी आए, आंखें लंबी हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं एजीएम के दौरान आए सभी को भावुक कर देने वाले वो पल। हिम्मत का तूफान है, इरादों की चट्टान है, औलाद जीना है, मेहनत से जीना है, हर दिल की धड़कन है, लाखों का अरमान है। रिलायंस इंडिया की जान है। I want to dedicate these 40 years of achievements and records to only one person, to our founder chairman, Shri Dhirubhai Ambani. Thank you. बात करते हैं शेयर बाजार की। रिलायंस और विप्रो के दम पर आज निफ्टी 9,900 के पार बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में 125 पॉइंट की मजबूती हमने देखी। एक पर एक बोनस और जियो फोन के ऐलान के बाद रिलायंस 4% तक उछला। हालांकि जियो मोबाइल लॉन्च के बाद टेलीकॉम शेयरों की हालत खराब नजर आई। इधर कैग ऑडिट रिपोर्ट में 6 टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार को चूना लगाने के खुलासे के बाद भी इन पर दबाव और बढ़ गया। इधर बायबैक के ऐलान के बाद विप्रो भी 8% तक भागा। विप्रो की वजह से तमाम आईटी के दूसरे शेयरों में भी हमने जोश देखा।
रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रेल के खाने में हो रहा है खेल। कैग ने खोली पोल, कहा इंसानों के लायक नहीं है रेलवे का खाना। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। टेलीकॉम कंपनियों पर आज दोहरी मार का दिन था। पहले जियो का जोर का झटका और उसके बाद कैग ऑडिट रिपोर्ट ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। कैग ने कहा है कि देश की 6 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार को चूना लगाया है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, किस तरह टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार को चूना लगाया है? देखिए, जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है उसमें यह कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार को करीब 12,229 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। ये जो चूना लगाया है वो स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस और लाइसेंस फीस के तौर पर टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार को कम पैसे दिए। वो कम पैसे दिए, 7,697 करोड़ रुपए कम पैसे दिए। चूंकि कम दिए, इसकी वजह से इस पर अगर ब्याज जोड़ा जाए तो ये करीब 4,500 करोड़ रुपए का बैठता है। यानी कुल मिलाकर 12,000 से ज्यादा का सरकार को चूना लगाया। चूना कैसे लगाया, तो इसके लिए सीएजी का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों ने समय समय पर जो प्रमोशनल स्कीम चलाए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो डिस्काउंट दिए, साथ ही साथ पोस्ट पेड कस्टमर जो थे उनको जो डिस्काउंट दिया, इसके एवज में उनका जो पैसा गया उस पैसों को उन्होंने अपने राजस्व में से घटा दिया, जो कि सरकार से किए गए समझौते के हिसाब से गलत था। और राजस्व से घटा दिया और फिर राजस्व में उन्होंने 61,000 करोड़ रुपए कम दिखाए इस वजह से। और उसी अनुपात में उन्होंने लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस भी कम दिए। और ये सारा मामला इस वजह से ज़्यादा गंभीर है क्योंकि लगातार दूसरी बार देश की सबसे बड़ी ऑडिट करने वाली एजेंसी सीएजी ने टेलीकॉम कंपनियों पर आरोप लगाया है। इससे पहले 2004-05 से लेकर के 2010-11 तक के लिए यही आरोप इसी आधार पर लगाए गए थे। दूसरी बार उसी आधार पर फिर से आरोप लगाए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में टेलीकॉम मंत्रालय की तरफ से इस पर गंभीर संज्ञान लिया जाएगा और कोई जांच बैठाई जा सकती है। तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। आगे बढ़ते हैं। कैग ने एक और धमाकेदार रिपोर्ट भी संसद में रखी। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर जो खाना परोसा जा रहा है वो इंसानों के खाने लायक है ही नहीं। डरा देने वाली ये जानकारी कैग की रिपोर्ट से मिली है। प्रभु पर भरोसा कर ये खाना खाया तो बीमार पड़ जाएंगे, स्टेशन पर कुछ खाया तो सेहत खराब होगी, ट्रेन के अंदर खाएंगे तो पछताएंगे। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनों और स्टेशनों पर परोसा जा रहा खाना प्रदूषित है। डिब्बा बंद और बोतल बंद चीजों को एक्सपायरी डेट के बाद भी बेचा जा रहा है। पानी तक की गारंटी नहीं है। जिस ब्रांड को बेचने की इजाजत नहीं है वो भी बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, बीमार कर देने वाला ये खाना महंगा भी बेचा जा रहा है। न बिल मिलता है, नहीं सही दाम का पता चलता है। जरूरी बेस किचन नहीं है। रेलवे के 7 जोन में कैटरिंग सर्विस के लिए ब्लूप्रिंट तक नहीं है। समोसा मैंने लिया तो है यहाँ से बच्चे की डिमांड पे, अदरवाइज मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि ये अच्छा होगा, हेल्दी होगा फॉर बेबी। पेनेट्री जो है ना यहाँ से क्रॉस कर रहा था तो जो खाना देने वाला उसके हाथ से खाना नीचे गिर गया है ना, तो अंडा था एक, वो नीचे गिर गया। उसने मेरे सामने वो उठाया और वही वो उसमें डाला एंड ही सर्व्ड मी। मेनू कार्ड नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कितने में लिया जा रहा है, कैसे मालूम चलता है? जो वो बोलता है कि इतना का लेना है उतना हम लोग पेमेंट करते हैं पैसा। न मेनू देता है, न कुछ बताता है कि कब का खाना बना हुआ है, कभी बासी भी दे देता है। रेलवे में स्वच्छता अभियान के नाम पर करोड़ों स्वाहा हो गए, लेकिन सीएजी ने पाया कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में साफ सफाई नहीं है। सीएजी और रेलवे की संयुक्त टीम ने 74 स्टेशनों और 80 ट्रेनों का जायजा लिया। पता चला कि पीने की चीजों को तैयार करने के लिए अशुद्ध पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कूड़ेदान ढके नहीं पाए गए। खाने की चीजों को मक्खी और धूल से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रेनों में चूहे, कॉकरोच मिले। सीएजी रिपोर्ट तो आज संसद में टेबल की गई है और हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। अभी ये कुछ 1-2 दिनों में जब हमारे पास आ जाएगी तो हम इस पर टिप्पणी करने की सिचुएशन में होंगे। जब भी हमारे पास इस प्रकार की कंप्लेंट आती हैं तो हम इस पे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हैं। पिछले 5-6 महीने में हमने 7 कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लेंट्स के बेसिस पर ही टर्मिनेट किया है। रिपोर्ट आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर हर जगह रेल मंत्रालय की खिंचाई हो रही है। याद रखिएगा कि ये वही रेलवे है जिसे आधुनिक दिखाने के लिए कभी बुलेट तो कभी हमसफर और कभी तेजस जैसी ट्रेनों का माया जाल बुना जाता है। सवाल ये है कि जब बुनियादी चीजें ही सही नहीं हैं तो रेलवे सही पटरी पर कैसे चलेगी? बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाएंगे, ट्विटर से रेल चलाएंगे, मगर हे प्रभु, लोगों को साफ खाना और साफ पीने का पानी कब पहुंचाएंगे? प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली।
रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुजुर्गों को मोदी सरकार ने क्या दिया तोहफा, पूरी खबर ब्रेक के बाद। बुजुर्गों को मोदी सरकार ने तोहफा दिया है। उनके लिए खास पेंशन योजना लॉन्च की गई है। सरकार ने इस योजना का नाम रखा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इस स्कीम के तहत 10 साल के लिए 8% रिटर्न की गारंटी होगी। बुजुर्गों के पास हर महीने, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर ब्याज लेने का विकल्प दिया जाएगा। अगर हर महीने ब्याज लेना है तो कम से कम 1.5 और अधिकतम 7.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है और ऐसी सूरत में 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक हर महीने आपको मिल सकते हैं। हर महीने ब्याज लेने पर 8.3% का प्रभावी रिटर्न मिलेगा। इस प्लान के तहत गंभीर बीमारी की स्थिति में 3 साल बाद 75% रकम तक का लोन भी लिया जा सकता है। ये प्लान LIC से अगले साल मई तक खरीदा जा सकता है। खास बात यह है कि ये GST से भी बाहर होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये प्लान लॉन्च करते हुए कहा कि इससे बुजुर्गों को जोखिम मुक्त रिटर्न हासिल करने में मदद मिलेगी। Senior citizens really want a no-risk investment, and they want a non-fluctuating return. They want a reasonable rate of return because not being gainfully employed at that age, they want the security which that fixed income can bring them. And therefore, in this balance, this is the scheme which was announced by the Honorable Prime Minister, which the LIC has already put into action, which ensures a real return of 8.3%. LIC ने साफ किया है कि नई पेंशन योजना के तहत मिलने वाले ब्याज पर स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा। LIC चेयरमैन VK शर्मा से बात की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। एक जो मुद्दा उठा है कि इस पेंशन स्कीम से रिटर्न मिलेगा लोगों को, क्या ये इनकम टैक्स के दायरे में आएगा? कोई भी पेंशन, कोई एन्युटी पेमेंट जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में होती है। वो उसके इनकम में, पेंशनर के इनकम में जुड़ती है। अगर वो पेंशनर इनकम टैक्स के दायरे में है तो उसके इनकम का भाग। इसमें आपने एक मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट तय किया है खासतौर से निवेशकों के लिए, तो क्या आगे चलकर निवेशकों के रिस्पॉन्स को देखते हुए इसमें किसी तरह की समीक्षा की जाएगी? नहीं, भारत सरकार ने ये इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम तय किया है कि आने वाले समय में अगर इंटरेस्ट रेट नीचे होता है तो LIC को या भारत सरकार को इसका नुकसान न हो। रुक करते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में FDI लाने के लिए सरकार 3 से 5 नवंबर के बीच मेगा इवेंट करने जा रही है। वर्ल्ड फूड इंडिया नाम के इस आयोजन में देश दुनिया की नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी और मुंबई में आज इसी सिलसिले में रोड शो का भी आयोजन किया गया। फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर ने भरोसा जताया है कि अगले 10 साल में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में $10 अरब का निवेश आ सकता है। अमेज़ॉन जैसे जो सिर्फ ई-कॉमर्स करती थी, उन्होंने भी $500 मिलियन की कमिटमेंट अगले 3 साल में फूड सेक्टर में दी है जब से ये FDI आया है। तो मैं आराम से कह सकती हूँ कि आज जो है उससे कम से कम 100 गुना ज़रूर बढ़ेगा। हमारा टारगेट है कि अगले 3-4 सालों में कम से कम $10 बिलियन का ऐसी इन्वेस्टमेंट सिर्फ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आए। आगे बढ़ते हैं। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने अपनी बेस्ट सेलिंग SUV GLC का AMG मॉडल लॉन्च कर दिया है। इस AMG GLC 43 कूपे की कीमत 74,80,000 रुपए है। मर्सिडीज की तरफ से देश में इस साल की ये 8वीं लॉन्च है और ये गाड़ी जरूर GLC का AMG वेरिएंट है, लेकिन लुक और फीचर्स के लिहाज से बिल्कुल अलग है। और आवाज एट 9 में इतना ही, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।